we started. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Now we are going to apply SQ3R method on the chapter number 18, which is Ijara wa Iqtina. In Arabic, Ijara wa Iqtina, and in simple English, leasing and promise to gift. There are multiple methods. One is the simple Ijara, simple renting transaction. Every one of you have observed in your life, rent out something by yourself or by others or by your relatives. But in banking terminology, there are multiple structures available. In Pakistan, we use ijara, then sale method, but in some other countries, there is leasing and promise to gift. In that contract, Islamic bank or Islamic financial institution provide the asset on the leasing basis, and at the end they promise that if you uh, pay your rent as per agreed terms and conditions in the agreement, we will give this asset to you at the end of the tenure. Let's assume 5 years, 10 years. So so we can start by survey. So we can read the first sentence. In Islamic Sharia, it is allowed that instead of sale, the lessor sign a separate promise to gift the leased asset to the lessee at the end of the lease period. This is same as I informed you previously. Just we will survey first, then we will read one by one chapter number 17, then chapter number 18. You can read yourself also, but now we are going to survey together. Sublease, what is the sublease? Sublease mean if you provide some asset to a party to use it, but that party provide another party on the rent. So rent lessee of the lessee is the sublease. It can be done with the permission of the original owner, or otherwise we will read further instructions and principles. असाइनिंग ऑफ द लीज, हवाला जिसे हम कहते हैं। तो इसके क्या उसूल हैं, जस्ट हम अभी सर्वे कर रहे हैं, हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे। हाउ टू ऑपरेट इस्लामिक लीज एज अ मोड ऑफ फाइनेंस, एज अ मोड ऑफ फाइनेंस, एज अ फाइनेंसिंग मेथड। मोड मीन मेथड, एज अ फाइनेंसिंग मेथड, way of finance, mode of finance, method of finance. How can Islamic leasing institutions or Islamic financial institutions can use this? So this is also a survey we can read separately. The practical steps for lease purchase operation. For a lease purchase operation. Purchase contract of asset, because Islamic Bank will provide the asset to the client. So first of all, it will purchase. Step by step transaction is mentioned here, but right now only we are going to survey, not further reading. So we only survey rather than specific reading. Areas of application in Islamic bonds market. Islamic bonds market also called sukuk. Sukuk means certificates. Islamic bonds are called sukuk. So possibilities and challenges. So what are the possibilities? What are the challenges? These are mentioned here. One of your classmates have already understanding of sukuk or certificates or Islamic bonds. So most welcome to read this section very carefully, specifically advanced level information. Ijara bonds mean Islamic bonds, sukuk also based on ijara, but sukuk can be based on ijara, based on other mode of finance. So we can uh, understand by this as a can alternate of conventional bonds. Further survey characteristics of ijara bonds. What will be the characteristics of a ijara bonds or ijara sukuk? Agreements in issuance of ijara bonds, step by step agreement we can see, and conclusion. So from here it is going to be closed. So
we have surveyed of the chapter or chapters. So, is there any question you have raised SQ3R technique? Who they are listening this video directly, they advise to kindly search about the SQ3R technique, which we are going to apply on these chapters related to ijara or renting transaction. So chapter number 17. From chapter number 17, we can uh, ask ourselves that what we know already. हम क्या पहले से जानते हैं इस बारे में और क्या नई चीजें हमें इस चैप्टर में मालूम होना मुतमक्के है। तो ये सारे सर्वे के बाद लाजमन आपने अगर सिंसियरली ये सर्वे किया होगा तो लाजमन उसको नोट किया होगा या कुछ ना कुछ आपके जहन में खुद ब खुद आ रहा होगा। उन सवालों को सामने रखते हुए जब आप इसकी रीडिंग शुरू करेंगे तो उसके बाद फिर ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब क्या मेथड हम यूज करें इसको जो है इजारा की इजारा इज अ टर्म ऑफ इस्लामिक फिक्ह लेक्सिकली इट मींस टू गिव समथिंग ऑन रेंट, किराए पर देना। ये इसका जो है वो लुग़वी मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग है। इन द इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस द टर्म इजारा इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट सिचुएशन। सही है? इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जिसको हम फिक्हुल इस्लामी भी कहते हैं, इस्लामी उसूल भी कह सकते हैं, उसमें इजारा की टर्म दो मुख्तलिफ मानों में, दो मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज होती है। नंबर वन, in the first place, it means to employ the services of a person on wages given to him as a consideration for his हायर्ड सर्विसेज। किसी को आप मुलाजिम रखते हैं, किसी को आप उजरत पे रखते हैं, तो वो जो है इजारतुल अशखास कहलाता है। द एम्प्लॉयर इज कॉल्ड मुस्ताजिर, यानी एम्प्लॉयर जिसको आप कह रहे हैं। वेल द एम्प्लॉय इज कॉल्ड आजिर। सही है? जिसको एम्प्लॉय को जो है वो अजीर कहते हैं, अजीर, मुस्ताजिर और अजीर। वेल द वेजेस पेड टू दी अजीर आर कॉल्ड दी उजरा। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि इसकी उजरत जो है वो मशहूर हदीस है ना, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। तो ये भी हम कह सकते हैं उजरत, हम उसको कह सकते हैं मजदूरी, जिसे हम उर्दू में कह रहे हैं उजरत भी कहते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दी है, if A has employed B in his office as a manager on a monthly salary, A is the mustajir, B is the ajir। आप में से भी कोई ना कोई जो है वो एम्प्लॉयमेंट करता होगा, तनख्वाह लेता होगा। तो ये एग्जाम्पल जो है वो इसकी इजारतुल अशखास की पहली एग्जाम्पल है। इजारतुल अशखास, इस पहली टाइप को इजारतुल अशखास कहा जाता है, यानी किसी शख्स को उजरत पे रखना, किसी शख्स को मुलाजमत पे रखना, उजरत पे रखना। सिमिलरली, if he is has hired the services of a porter to carry his luggage to the airport, A is mustajir when the porter is an ajir, and in both cases the transaction between the parties is termed as ijaratul ashkhas। अशखास वही उर्दू वाला है, हम शख्स कहते हैं, शख्स की जमा अशखास है। तो इजारतुल अशखास का मतलब है कि कोई चीज किराए पर और किसी शख्स को उजरत पर रखना। तो ये इसका मतलब है। फर्दर जो है, द सेकंड टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू द यूजरफ्रक्ट्स ऑफ एसेट्स एंड नॉट टू द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरी टाइप क्या है? इजारा रिलेट्स टू द यूजर फ्रक्ट्स। यूजर फ्रक्ट्स कहते हैं हम किसी चीज का इस्तेमाल करने का हक। मिसाल के तौर पर आप किसी घर के मालिक हैं, किसी गाड़ी के मालिक हैं, किसी बाइक के मालिक हैं, किसी साइकिल के मालिक हैं। तो आप मालिक होने की हैसियत से आपका हक है कि आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन आप कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए वो अपना इस्तेमाल करने का हक किसी को कह देते हैं कि भाई मैं नहीं, तुम इस्तेमाल कर लेना, हाँ ये घर तुम इस्तेमाल करना, लेकिन मुझे हर महीने किराया देते रहना। तो ये यूज ऑफ रक्स कहते हैं। मनफात गाड़ी उर्दू में, खालिस उर्दू में, और आसान उर्दू में आप कह सकते हैं कि हक इस्तेमाल, इस्तेमाल करने का हक जो कि उसूली तौर पर मालिक का था, वो किसी और को दे रहे हैं। आप किराएदार को क्या करते हैं? आप इस्तेमाल करने का हक तो देते हैं, ओरिजिनल चीज आपकी अपनी होती है। एंड नॉट टू दी सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स।
सही। ये वाली जो टाइप है इसमें इंसानी खिदमात की बात नहीं हो रही, जैसा कि टाइप 1 के अंदर बात हुई थी। यहाँ पर किसी शय के इस्तेमाल, किसी चीज के इस्तेमाल की बात हो रही है। अच्छा जी। इजारा इज in this sense means to transfer the usufructs of particular property or asset to another person in exchange for a rent claimed for him। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछे, मैं बता देता हूँ, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बड़ी मजेदार सी एक टेक्निक जहन में आई। रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो अच्छा है। अब यहाँ से ऑनवर्ड आप लोगों के स्क्रीन पर ये आ रहा है, खुद से आखिर तक यहाँ से यहाँ तक पढ़े। और या तो कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो वो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में या माइक्रोफोन के जरिए। या फिर सब समझ में आ रहा है तो फिर आप बताएं कि क्या समझ में आया। जी। अगले 2 मिनट का टाइम है, छोटा सा जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसकी रीडिंग की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा सुन सुन के इंसान सुन हो जाता है, तो बेहतर है कि आप भी थोड़ी सी हरकत करें, थोड़ा सा पढ़ें। सर आपने जब आप सर्वे कर रहे थे, ऑब्वियसली SQ3R मेथड जब आप अप्लाई कर रहे थे, तो उसका सर्वे में आपने मेंशन किया था कि जो क्या कहते हैं, जो लेसर है वो मालिक को कहते हैं, और लेसी को कहते हैं जो जो रह रहा होता है, जो एम्प्लॉयड बेसिकली, जैसे अगर रेंट किया हुआ है तो रेंट पे जो रह हाँ, रहा जो होता है, इस तरह ही इस्तेमाल कर होता रहा है ना है, जो सर? इस्तेमाल कर रहा है, किराएदार जिसे यस हम सर। आसान उर्दू में कहते हैं, किराएदार। यस सर। तो ये जी। उसी के बारे में बात करें, द लेसी इज कॉल्ड मुस्ताजिर एंड द रेंट पेबल टू द लेसर इज कॉल्ड उजरा। तो however there are many differences between these सही। contracts। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके हवाले से बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि किसको क्या कहा जाता है। जैसे कि ऊपर वाले उसके अंदर था, इस तरह यहाँ पर भी इस टाइप के अंदर भी बताया गया। चले माशाल्लाह। आ, अच्छा बताया हमारे एक स्टूडेंट ने। मजीद कोई? सर जो नॉर्मल रेंट वाली चीजें हैं ये उसी के बारे में ही लिखा हुआ है, बस वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो लीज पे दे रहा होता है उसको मुजिर कहते हैं, जो लीज पे ले रहा होता है उसको मुस्ताजिर कहते हैं, और रेंट को उजरा कहते हैं। और बेसिकली यही लिखा हुआ है कि हम जब रेंट पे चीजें देते हैं तो रेंट लेने वाले को, रेंट देने वाले को, और रेंट को इटसेल्फ क्या कहते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी जबरदस्त से। माशाल्लाह अनीश कुमार, आपने इसको समझा, अच्छा एक्सप्लेन किया। तो जस्ट इसी मेथड को हम आगे बढ़ाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है सबने पढ़ लिया होगा। तो अब जो है वो ये जो दो स्टूडेंट्स माशाल्लाह अनीश और दीगर हमारे एक स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया, फर्दर इनके अलावा कोई जो है वो एक्सप्लेन करेगा, ये लोग भी पढ़ेंगे लेकिन दीगर लोग भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इंक्लूसिवनेस के साथ हम आगे बढ़ें, सबको शामिल करने की कोशिश कर सकें। तो बेसिक रूल्स, सही है, यहाँ से ऑनवर्ड नाम से जाहिर है बेसिक रूल्स शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला बेसिक रूल, अगेन इसमें भी हम मेनली हेडिंग्स को फोकस करते हुए उसकी तफसील के लिए हम अदर देन हेडिंग्स पे जा सकते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ यूजर फैक्ट्स नॉट ऑनरशिप, इसका बुनियादी तरीन उसूल है कि आप वो एसेट की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसके इस्तेमाल का हक ट्रांसफर कर रहे हैं। सही। और यही कन्वेंशनल लीज में और इसमें भी एक डिफरेंस है कि वहां पर जो है वो कहते हैं कि भाई लेसी जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा हो बुरा हो जो भी इस एसेट के साथ हो वही रिस्पॉन्सिबल है। बैंक सिर्फ इसका मालिक है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ पर जो है ये जो है ये हमें बता रहा है, इन लीजिंग द ऑनर ट्रांसफर्स इट्स यूजर फैक्ट्स टू अनदर पर्सन फॉर एन एग्रीड पीरियड। फॉर एग्जांपल हम 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं पाकिस्तान में, कराची में खास तौर पे, तो वो जो है वो एग्रीड पीरियड हो गया। एट एन एग्रीड कंसिडरेशन, जिसको हम रेंट कहते हैं, एग्रीड कंसिडरेशन जिसे अब कहा जा रहा है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, अब कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज शुड बी वैल्यूएबल, आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड। कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हो, जिसकी वर्थ हो, जिसकी कीमत हो कोई, तो उसको जो है सब्जेक्ट मैटर बनाया जा सकता है। सही। ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, उसको कौन किराए पर लेगा और कौन किराए पर देगा। सही। तो ये जो है ये एक वो है आइडेंटिफाइड। सही। आइडेंटिफाइड और क्वांटिफाइड, बाज औक़ात ऐसा होता है किसी शख्स की मिल्कियत में बहुत क्वांटिटी में बहुत ज्यादा वो चीज होती है। इसकी आसान ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, शोरूम।
शोरूम पे आप गए और वो रेंट ए कार का काम भी कर रहे हैं, शोरूम का भी कर रहा है, उसने कहा भाई जो गाड़ी चाहिए आपको वो आप किराए पर ले सकते हैं, इतने 1,000 रुपये घंटा या इतने 100 रुपये घंटा, हजारों में ही होता है नॉर्मली अब तो वो आइडेंटिफाइड और क्वांटिफाइड होनी चाहिए ताकि फिर उसमें कोई झगड़ा ना हो। इसी की दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक शख्स है जिसका अपार्टमेंट, जिसकी पूरी बिल्डिंग है, उसमें मिसाल के तौर पर 10 अपार्टमेंट्स हैं। तो अब जब वो किराए पर दे रहा है तो वो नॉर्मली इसको आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन सा वाला फ्लैट है, फ्लैट नंबर 8 है, 2 है, 10 है, फ्लोर कौन सा है, फ्लैट कौन सा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, या एक से ज्यादा है तो उसकी कितनी क्वांटिटी है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है। तो ये सारी चीजें, यानी आसान अल्फाज में इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई अनक्लियरिटी ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से बाद में डिस्प्यूट क्रिएट हो, बाद में कोई झगड़ा खड़ा हो। तो ये जो है ये हमारा बेसिक इसमें मामला है। ऑल कंज्यूमेबल थिंग्स कैन नॉट बी लीज्ड आउट। कोई भी कंज्यूमेबल थिंग जो है वो लीज्ड आउट नहीं की जा सकती, किराए पर नहीं दी जा सकती। कंज्यूमेबल थिंग क्या होती है इसको समझें पहले। कंज्यूमेबल थिंग वो चीजें होती हैं जिनकी ओरिजिनल को बाकी रखे बगैर उनसे फायदा हासिल नहीं किया जा सकता, उनके ओरिजिनल को खत्म किए बगैर उनसे फायदा हासिल नहीं किया जा सकता, यानी उनको कंज्यूम किए बगैर उनसे फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आटा, सही है। अब आटा जो है अगर कोई किसी को किराए पर दे तो उससे क्या फायदा हासिल कर सकता है, जब तक आटे को रोटी में कन्वर्ट ना करा लिया जाए, उसको खा ना लिया जाए, जब तक उससे फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। तो कंज्यूमेबल थिंग्स किराए पर नहीं दी जा सकती, सही है। इसी तरह एक जितने भी फ्यूल है वो सारे कंज्यूमेबल है, फ्यूल पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, वो आप किसी को किराए पे दे तो वो क्या फायदा उससे हासिल करेगा, जब तक वो उसको कंज्यूम नहीं कर लेगा तो उससे फायदा नहीं हासिल किया जा सकता, और कंज्यूम कर लेगा तो फिर ओरिजिनल बाकी नहीं रहेगा, इसलिए इसको किराए पर नहीं दिया जा सकता, सही। तो कंज्यूमेबल थिंग्स कैन नॉट बी लीज्ड आउट, ये एक उसूल हमने पढ़ा, फर्दर तफसीलात आप यहाँ पढ़ लें। लेकिन इसी के वाइस वर्सा हो गया कि नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स जो है वो किराए पर दी जा सकती हैं, जैसे घर है। घर जब आपने किराए पर दिया था 100 गज का था, 1,000 यार्ड्स का था, स्क्वायर यार्ड्स का, और 1 साल बाद जब आप घर खाली करा रहे हैं जब भी वो 1,000 स्क्वायर यार्ड्स का है। ऐसा तो नहीं होता कि आप जब इस्तेमाल करने से वो घर 1,000 के बजाय 800 स्क्वायर यार्ड्स का रह गया हो, या 100 गज के बजाय 80 गज का रह गया हो, ऐसा नहीं होता ना। तो कंज्यूमेबल थिंग्स वो होती हैं जिनके ओरिजिनल जो है वो कंज्यूम हो जाती है, तो वो किराए पर नहीं दी जा सकती। और नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स वो होती हैं जिनके ओरिजिनल को बाकी रखते हुए उनसे फायदा हासिल किया जा सकता है। जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं नॉर्मली, जैसे घर है, गाड़ी है, मशीनें हैं, ये सारे नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स हैं जो कि किराए पर दी जा सकती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्विज है बगैर नंबर का, करूँ? सब तैयार हैं, होशियार हैं, जागे में? अच्छा, क्विज का जवाब जो है ना वो देगा जिसका मैं नाम पुकारूंगा, ताकि पता चल जाए कितने लोग बंद कर गए, सोने चले गए। पूछ लूं? जागे में सब? यस सर, पूछ लें। चले, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। अच्छा, इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। हम करेंसी नोट, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल की जो अभी पॉइंट हमने समझा है, इस पे करेंसी नोट, पाकिस्तानी रुपीस, डॉलर, योन, कोई भी करेंसी आप ले लें, वो कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है? सर नॉन कंज्यूमेबल है, रेंट पे दी जा सकती है। रेंट पे दी जा सकती है, सही है। मैं आपको 100 का नोट रेंट पे दूंगा, आप उससे क्या फायदा हासिल करेंगे? सर कंज्यूमेबल है। सर नहीं, आप पाकिस्तानी करेंसी की बात नहीं करें, अगर आप सर क्या कहते हैं डॉलर की बात करेंगे, आप मुझे 1 महीने के लिए उधार पे दे सकते हैं, सही है ना। लेट से आपने मुझे $100 दिए और आपने कहा कि सही है, इसको 1 महीने के बाद मुझे तुम रिटर्न कर देना, ठीक है ना सर। जी जी। अब इससे ये सर बेनिफिट मैं ये हासिल कर सकता हूँ, अगर डॉलर ऊपर होता है तो सर ये मेरा बेनिफिट होगा, मैं आपको $100 दे सकता हूँ दोबारा अच्छा, 1 महीने अभी के बाद। यहाँ तक देखें इसका बहुत अच्छा आपने पॉइंट इसको वो किया। इसको समझें कि ये 100 डॉलर, भले आप पीकेआर को इतना अच्छा नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, 100 डॉलर का नोट आप उससे फायदा क्या हासिल करेंगे, सिवाय आप दूसरी करेंसी में लेकर जा रहे हैं, दूसरी करेंसी नहीं, ओरिजिनल वो 100 डॉलर एज इट इज आपके पास है,
और आपने डॉलर में ही, फर्ज करें मामला, आप पीकेआर में जाए ही नहीं ना, जब जिस करेंसी में बात कर रहे हैं उसी करेंसी में बात करते हैं। $100 आपने लिया, $100 मुझे वापस करना है, तो उससे फायदा क्या क्या हासिल किया आपने? आप फायदा हासिल करने के लिए उसको पहले खर्च करेंगे, अगर कपड़े बनवाने हैं तो कपड़ा खरीदेंगे, उसको खर्च करेंगे, फिर उससे फायदा हासिल करेंगे। उससे कोई रोटी लेंगे, उसको खाएंगे। उससे कोई फायदा हासिल करने के लिए आप उसको खर्च करना पड़ेगा, तो ये कंज्यूमेबल आइटम है। और कंज्यूमेबल आइटम को किराए पर नहीं दिया जा सकता, ये उसूल हमने पढ़ा। अब यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, एक बहुत बड़ा एतराज है। लोग कहते हैं कि सूद अलाउ होना चाहिए, क्योंकि जब हम घर किराए पर देते हैं, तो घर किराए पर देते हैं तो वो जायज है। तो आप पैसा क्यों किराए पर नहीं दे सकते, किसी भी करेंसी में हो, उसी करेंसी की हम बात कर रहे हैं दोबारा। तो यहाँ पर जवाब ये है कि पैसा, कोई भी करेंसी हो, वो कंज्यूमेबल है। ओरिजिनली आप उससे फायदा जब तक हासिल नहीं कर सकते, जब तक उसको आप कंज्यूम ना कर लें, उसको खर्च ना कर लें, उससे कपड़े ना बनवा लें, उससे खाना ना बनवा लें, एक्स वाई जी कोई भी उससे फायदा आप जब हासिल कर सकते हैं। बाकी जो है वो करेंसी आप खाली देख देख के खुश होते रहें, तो ये इससे कोई खास फायदा आप हासिल नहीं कर सकते। ये तो ऐसे ही है जैसे आपको भूख बहुत लगी हो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और आप जो है वो 3 रोटियां सामने रखी हुई हैं, और आप जो है ना बस देख देख के खुश हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फायदा तो नहीं आपने एक्चुअल उससे हासिल किया। आप जो है वो बल्कि और परेशान होंगे, जब भूख भी लगी है, सामने रोटी भी है, तो इसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो और नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली, लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन कंज्यूमेबल की बात थी, घर था, गाड़ी थी, मशीनरी थी, जिन चीज़ों को हम फिक्स एसेट नॉर्मली हम अकाउंटिंग में कहते हैं, किराए पर देते हैं, तो वो एसेट्स जो है वो उनके ओरिजिनल को बाकी रखते हुए हम उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक बेसिक डिफरेंस है। यानी रिबा के हवाले से एक बहुत बड़ा एतराज बाज लोग ये करते हैं कि जिस तरह फिक्स एसेट हम किराए पे दे सकते हैं, इसी तरह जो है वो आ, पैसे को भी किराए पे दिया जा सकता है। तो जवाब ये है कि फिक्स एसेट की एग्जांपल अलग है, और कंज्यूमेबल आइटम्स में जो है करेंसी भी है, और दीगर गजाई और नॉन गजाई अशिया भी हैं, वो सारी जो है उनकी मामलात अलग है। उम्मीद है ये पॉइंट बहुत अच्छा अंदाज में क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो गया, 10 मिनट रह गए। चले, 10 मिनट रह गए, तो हम कोशिश करते हैं जहां तक जाता है मामला उसको आगे सर बढ़ाते मेरे हैं। सवाल का एक जवाब तो दे दें, मैंने आपसे जी जी। शुरू में ही पूछा था सर। जी जी, आप बताएं, आप बताएं। सर ये इजारा व इक्तिना ये क्या है सर? ये इजारा आपने व इख्तना। इसमें डिस्कस नहीं किया। हाँ, इजारा व इख्तना वैसे तो हम अब इतना टाइम नहीं बचा, हो सकता है अगली क्लास तक जाए मामला। इजारा व सर इख्तना ऊपर का ऊपर से मतलब, मैं अगर जो समझाऊं वो ये समझाऊं, इजारा व इक्तिना ये होता है कि आप अपनी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को आप जो है लेसी के मकसद हैंड ओवर कर देते हो सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन क्या कहते हैं टाइम पीरियड के ऊपर। हाँ हाँ। मैं जो समझा हूँ, अब जी आप जी। मुझे ऐसी है सर। अच्छा, इजारा व इख्तना जो है ना, चैप्टर नंबर 18, उससे नीचे ही उन्होंने लिखा हुआ है कि किराए पर देने वाला मालिक जो है, ये असल में इसको आप नॉर्मल किराएदारी का ट्रांजैक्शन ना समझें, इसको समझें बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंक जो है वो जब अच्छा। किराए पर कोई एसेट देता है, तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर अब पाकिस्तान में जो आम एग्जांपल है, कि पाकिस्तान में आपने XYZ मीज़ान बैंक से गाड़ी ली किराए पर, इजारा कार इजारा ही कहते हैं वो। तो वो जो है 6 महीने, 6 साल, 7 साल के लिए आपने ली मिसाल के तौर पर। तो एट द एंड बैंक क्या एग्रीमेंट करता है कि 6 साल आप किराया देंगे, उसके बाद जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट बैंक ने वापस करनी है और आपने गाड़ी वापस करनी है, तो उसको हम सेट ऑफ कर लेंगे, उस पर सेल ट्रांजेक्शन कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 70 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी ली थी, 30 लाख आपने डाउन पेमेंट दी थी, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, और 70 लाख जो है वो बैंक ने दिए थे। अब किराया बैंक लेता रहा, एक्चुअल गाड़ी मिल्कियत इजारा की हैसियत से बैंक की है। तो बैंक क्या करता है, आखिर में जो 7 साल बाद जब एग्रीमेंट हमारा खत्म हो रहा है किराए का, तो अलग एग्रीमेंट के थ्रू, इसी एग्रीमेंट में नहीं, अलग एग्रीमेंट के थ्रू बैंक आपको वो एसेट सेल आउट कर देता है कि भाई 30 लाख जो मैंने देने हैं, तुमने मेरी गाड़ी वापस देनी है, ये हम सेट ऑफ कर लेते हैं। 30 लाख मेरे हो गए, गाड़ी तुम्हारी हो गई। यानी दूसरे अल्फाज में बैंक रेजिडुअल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, उस पर वो एसेट 30 लाख में बेच देता है। सही है, पाकिस्तान में ये मेथड है, पाकिस्तान में इजारा व इख्तना वाला मेथड नहीं है, लेकिन उसको समझे, मेरे ख्याल में गल्फ में, यूएई वगैरह में इजारा व इख्तना वाला मेथड है। उसमें इसी वाले मेथड के अंदर, सिंपल किराएदारी के मामले के अंदर, वो कहते हैं भाई 7 साल का हमारा किराए का मामला है, अगर 7 साल तक आपने बिल्कुल सही पेमेंट्स करते रहे, कोई लेट पेमेंट नहीं की, कोई तंग नहीं किया हमें, तो हम आपको आखिर में गिफ्ट कर देंगे। ये एक अलग एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो बैंक उससे वादा करता है कि मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा।
इक्तिना का मतलब यहाँ पर समझ लें कि गिफ्ट करने का वादा। सही है। ये जो चैप्टर नंबर 18 आप जाएंगे ना, तो वहां पर नीचे लिखा हुआ है, मैं ले भी जाता हूँ। क्योंकि हम पूरा वैसे भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यूरी आपकी अच्छी है, तो उसका मैं आपको तशफ़ी बख्श जवाब देना चाहूंगा। आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये चैप्टर नंबर 18 जब शुरू हो रहा है ना, इजारा व इक्तना, इसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये असल में अरबिक वर्ड है। इजारा किराएदारी, इक्तना का क्या मतलब है ये अभी हमें समझ में आ जाएगा, लीजिंग, ये हो गई इजारा। और एंड वाओ वाओ अलिफ जो है, वा एंड प्रॉमिस टू गिफ्ट, ये इक्तना का मतलब है प्रॉमिस टू गिफ्ट। तो इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में तो नहीं, यूएई वगैरह में, गल्फ में बास बैंक्स जो है इस तरह का मुआयदा करते हैं कि क्लाइंट से मुआयदा करते हैं कि भाई आखिर में आप कोई सेल वेल नहीं करेंगे, हम आपको गिफ्ट में दे देंगे, लेकिन अगर आपने तंग नहीं किया, तो आपने टाइमली पेमेंट्स की, तो ये है। सही। तो गिफ्ट का वादा आप कह सकते हैं। तो ये दूसरा जो है वो है। चलें, और किसी का कोई सवाल है तो हम वो सवालात को ही ले लेते हैं, बाकी जो है वो उम्मीद है ये चैप्टर्स अब आप खुद से पढ़ने के काबिल हो गए होंगे, और बाकी सर चीज़ें ये हम। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया है। बस सर अब जो एक कंफ्यूजन है वो ये कंफ्यूजन है कि सर अब जो क्लास है, कमिंग क्लास के अंदर सर न्यूमेरिकल एक बार दोबारा करवा दें सर। अच्छा, न्यूमेरिकल करवा दें। चलें, अभी तो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम न्यूमेरिकल पे इतना ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर बाज़ औक़ात एक चीज़ ये महसूस की कि न्यूमेरिकल करवाया तो स्टूडेंट यही समझने लगे कि इस्लामिक और कन्वेंशनल में फ़र्क ये न्यूमेरिकल था। मैंने बोला नहीं भाई, कन्वेंशनल में भी न्यूमेरिकल हो सकता है, इस्लामिक में भी। असल फ़र्क थ्योरेटिकल है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कब किस चीज़ का कौन मालिक है, उससे कब हो जाए, तो थ्योरी बेस्ड ये चैप्टर, ये हमारा ओवरऑल कोर्स है। और न्यूमेरिकल्स का, चूंकि इससे ही इस्लामिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक एडवांस कोर्स आएगा आपका इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो उसमें सारे न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे। तो इसमें जो है हमें थ्योरी पे फोकस रखना है। सही है। एक आध न्यूमेरिकल मैंने प्रीवियसली करवाया है, लेकिन जस्ट वो एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, एक दिलचस्पी पैदा करने के लिए। सही। लेकिन ये थ्योरी का कोर्स है, तो हमें सर थ्योरी पे ही पेपर के फोकस करना अंदर तो नहीं है ना न्यूमेरिकल? है। अब ये रिकॉर्डिंग में मैं पेपर तो नहीं आपको बता सकता, और वैसे भी नहीं बताऊंगा, तो मेरा ख्याल ही नहीं है। लेकिन मल्टीपल पेपर्स में चूंकि बनाता हूँ, तो मुझे ये भी याद नहीं है कि बाकी नहीं है। तो इसलिए कोई मसला नहीं है, अगर आपने क्लासें भरपूर ली हैं तो फिर इतना इशू नहीं होगा। बजाय मुझे ये याद पड़ता है कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सही है, क्योंकि थ्योरी का कोर्स है, तो हमें थ्योरी पे फोकस करना है। और मजीद किसी का कोई सवाल है इस टॉपिक से रेलेवेंट जो हमने डिस्कस किया है? वरना ये है कि रिकॉर्डिंग को हम इख्तिताम पजीर करते हैं। बाकी चैप्टर जो है वो उम्मीद है अब आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश कर लेंगे। अदरवाइज हम आगे आने वाली जो एक क्लास आपकी मिड से पहले की बाकी है, उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है। अनीश कुमार का रिस्पॉन्स आया, नो क्वेश्चन सर, तो हम इसको रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं।